Is mathematically approach 2 of the problem, and the approach is mathematical solution. Let's say our string is graphic. Okay, now how many characters after G are less than G? Because all the characters which are less than G will come in the lexicographical order before then this starting with G. So answer is A and I think C. These are the two characters which are less than less than G. So for starting with A, I have 5 places, or I think 6 places. Okay, so I can choose G, R, P, H, I, C, anything on these 6 places, and I can start with C and I can have 6 places. So obviously these two all strings will come before G because they are starting with less than G. So how many strings can be generated by using this? 2 into factorial 6 plus. Now if you see R, then how many characters are there which are less than R and after this? So you have this thing G, R, and how many characters? 5 characters, which are 5 places are available. But then how many characters are there? So instead of R, what I have to write? A, then C, then I can have, I think, all characters are less than R. So C, I, H, P. So all the characters are less than R. So this, how many? So 1, 2, 3, 4, 5. 5 into, and how many places? 5 places. So factorial 5. Then once I get G, R, then the next is A. How many characters are less than A? 0 characters. So there is nothing which can start before A. Okay, so that's why 0 into factorial 4, because I have 4 places but no string. Then after A we have fixed P, but before P how many characters are after P which are less than P? So all 3 characters. So this is 3 into factorial 3. Then after taking I, before I how many character? 1. So 1 into factorial 2. And then lastly we have C only. So 1 into factorial 1. Okay. And these are the number of strings which will come before graphic. Before graphic, these are the total number of string which will come. Now we have to find the rank of this string. So plus 1, because we have to count this one also. So now say this: 2 into 720 plus 5 into 120 plus 0 plus 3 into 6 plus 2 plus 1, and lastly plus 1. This is 1440 plus 600 plus 18 plus 3 and plus 1. So this is I think equal to what we are looking for, 2062. Okay, so this is how we can find the rank of a string. Now what we are doing is we are counting the number of characters lesser than the current character. So it can help us by using counting array. So what I will do is I will find the count of each character, and I will also find the factorial of the string, the length of the string, and every time I will decrement it, and it will be multiplied by the number of characters lesser than the current character. It will be multiplied. See, 2 is the number of character lesser than G, then multiply with factorial 6, then 5 is the number of character lesser than R, then multiply by factorial n minus 1, then 0 is the number of character lesser than A, then multiplied with n minus 2, then 3 is the number of character lesser than P, and so on. This is how we are doing, and plus 1 in the end. So
once I have count the frequency, I will also find the cumulative sum. Cumulative sum. So what is cumulative sum? So A is coming for one time, then C is coming for one time, then I is coming for one time, H is coming for one time. This is how we have recorded all the frequency, and then we have find the cumulative sum array, that is 1 2 3 4, because 1 plus 1 is 2, then plus 1 is 3, then plus 1 is 4. This is how I am finding the cumulative sum. Okay, and before this number, if this is my h, then number of characters lesser than h is 3, which is n minus 1th पोजीशन, i माइनस 1th पोजीशन. देखो अगर h की काउंट 4 है तो h से छोटे कैरेक्टर कितने हैं, जो उससे जस्ट पहले नंबर आ रहा है. फिर अगर मुझे पता है कि a मेरे पास ये है, तो इससे पहले मेरे पास यहाँ इनिशियलाइज्ड है 0, तो यानी कि a से छोटे कैरेक्टर कितने हैं, 0. तो मुझे हर बार इस स्ट्रिंग में चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कितने कैरेक्टर मेरे पास उस कैरेक्टर से छोटे हैं, बिकॉज दिस कॉम्युलेटिव सम कैन गिव मी द नंबर ऑफ कैरेक्टर लेसर देन द करंट कैरेक्टर. This is how we can build our solution. Let's see the code for this. Okay, so let's say integer rank of string is given as str, and here I have taken rank as 1, initialized with 1. Why? Because this is what I will add to my string, and obviously 1 से कम तो रैंक हो ही नहीं सकती है. ठीक है, अगर कोई स्ट्रिंग गिवन होगी तो 1 से ज़्यादा ही ज़्यादा होगी, या उसके फर्स्ट परम्यूटेशन ही अगर ये है तो 1 होगी. देन इंटीजर n इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ, एंड आई विल फाइंड द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बाय फैक्टोरियल ऑफ n. ये फैक्ट ऑफ n मुझे अपना एक नया फंक्शन बनाना पड़ेगा जो मुझे फैक्ट n देगा, यानी फैक्टोरियल ऑफ n रिटर्न करेगा मल्टीप्लिकेशन. और मेरे पास एक एरे है जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ये काउंट एरे है. फिर मैं एक लूप लगाता हूँ 0 से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक, ठीक है, या n तक चला सकता हूँ, और उसके अंदर काउंट कर लेता हूँ सारे कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी को. ये फ्रीक्वेंसी काउंट हो गया, इसको देख सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी काउंट हो गई है यहाँ पे. फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद मुझे कॉम्युलेटिव सम निकालना है, एरे का कॉम्युलेटिव सम. कॉम्युलेटिव सम कैसे निकलेगा, i को 0 से लेके 256 तक चलाना है, बिकॉज 256 ही साइज है मेरा जिसके अंदर हमारे फ्रीक्वेंसी पड़ी हुई है. उसके बाद मैं क्या करूँगा, काउंट ऑफ i इज इक्वल टू और प्लस इज इक्वल टू काउंट ऑफ i माइनस 1, और इसको 1 से चला देता हूँ 0 की जगह 1 से, बिकॉज अदरवाइज 0 माइनस 1 इज माइनस 1 विच इज नॉट एग्जिस्टिंग. सो माइनस 1 से चला दिया हमने, 1 से चला दिया इसको, और ये हमारा क्या निकाल देगा, क्यूमुलेटिव सम. ठीक है, अब जो करंट कैरेक्टर है, लेट्स से g फर्स्ट कैरेक्टर है, ये है ग्राफिक, और मेरे पास g क्या है, फर्स्ट कैरेक्टर है. तो g से पहले वाला इंडेक्स जो होगा, यानी कि काउंट ऑफ str ऑफ i वेयर i इज मार्क टू 0, इससे पहले वाला -1 इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच आर लेस देन g. -1 इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेस देन g. तो मुझे हर बार फाइंड करने की जरूरत नहीं कि कितने कैरेक्टर हैं इसके बाद जो लेस देन g हैं. ठीक है, ये कम्युलेटिव सम निकाल लिया. अब इसके बाद मैं कैलकुलेशन करनी चालू करता हूँ. मेरे पास i है, लेट्स से i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस n इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. ओके, नाउ मल्टीप्लाई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय n माइनस i. सबसे पहले मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, अपना जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो फैक्टोरियल ऑफ 6 था, फिर फैक्टोरियल ऑफ 5 है, फिर फैक्टोरियल ऑफ 4, फैक्टोरियल ऑफ 3, तो इसलिए हर बार माइनस i करता चला गया मैं.
पहली बार -0 फिर -1 फिर -2 होता चला जाएगा। और अगर मैं फैक्टोरियल ऑफ 6 को 6 से डिवाइड करूंगा तो फैक्टोरियल ऑफ 5 आ जाएगा। इसी तरह से इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो फैक्टोरियल ऑफ 4 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ आई एम फाइंडिंग द फैक्टोरियल, दैट इज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एवरी टाइम। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर निकालने के बाद मुझे सम में इसको प्लस करना है, तो रैंक प्लस इज इक्वल टू रैंक प्लस व्हाट, काउंट ऑफ str ऑफ i -1, यही तो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच आर लेसर देन माई करंट कैरेक्टर, इनटू मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ये मेरा फैक्टोरियल है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब जब ये सारा काम कर दिया तो उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिड्यूस भी हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिड्यूस भी हो रहे हैं, तो हमें फॉर j इज इक्वल टू, क्योंकि अगर मैंने देखो ग्राफिक जो है मेरे पास, अगर मैंने g को काउंट कर लिया है, अब इसके बाद जब मैं r को काउंट करूंगा तो इसके सारे कैरेक्टर्स में से एक एक कम हो जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करना है। जो भी ये कैरेक्टर था g, उसके बाद से लेके 256 तक इसकी फ्रीक्वेंसी को एक एक कम करना है, माइनस माइनस। ठीक है, और ये हमें लास्ट में जो रैंक मिलेगी, क्योंकि मैंने रैंक को 1 से इनिशियलाइज किया हुआ था तो 1 तो सबसे पहले ऐड हो चुका है उसमें, तो लास्ट में जो रैंक मिलेगी वो क्या होगा, रिटर्न रैंक। दैट्स ऑल, दिस इज माई होल फंक्शन फॉर फाइंडिंग द रैंक ऑफ अ स्ट्रिंग। ओके, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करोगे तो हमने एक ये एरे चलाया जो n साइज का है, फिर एक ये एरे नहीं लूप चलाया, और ये लूप चलाया बिग ऑफ k जो कांस्टेंट है, और ये वाला भी हमने बिग ऑफ n तक चलाया। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ k प्लस बिग ऑफ n, दैट इज बिग ऑफ n ओनली, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। और स्पेस हमने बिग ऑफ k यूज किया है, और इसको हम बिग ऑफ 1 भी बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज 256 every time. This is how we can find the rank of a given string.